हरिओम। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। आप लोग विगत कई दिनों से प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में मेरे साथ निकले हुए हैं। पूर्व के कुछ सत्रों में मैंने जो चीजें बताई हैं, आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति करना मुझे लगता है आवश्यक है, क्योंकि काफी पर्याप्त अंतराल हो चुका है। हम जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं उसमें कुछ विशेष ध्यान देने हैं। मैं हमेशा से सदैव कहता आ रहा हूँ, अत्यंत गहरी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे अत्यंत गहरी सांस छोड़ना है। इस लेने और छोड़ने के बीच में एक थोड़ा विराम भी देना है, क्योंकि जो आपने सांस ली है उसके संग दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हुई है और वो दिव्य ऊर्जा आपके प्रत्येक कोशिकाओं को एकदम उसके केंद्र तक जाके ऊर्जित कर रही है। Each and every breath which we are taking in during this pranayam on our journey to dhyan, each and every energy which is coming inside our body through breath is a divine energy, and it is energizing the whole core of the cells, that is mitochondria. When it is being happened, we have to be very particular about our breathing, because that is the key. Now we understand how it is to be done. It has already been told. 1. Take very deep breathing. Inhale deep. Then exhale from the bottom of your stomach. Deep exhaling. And in between inhaling and exhaling, there has to be a little pause. Why? Because when this divine energy has gone inside, it has touched, energized, given the divine energy to each and every cell, to its core, that is mitochondria, and it is in process taking out all the toxins from the core of it. And then when you do the deep exhaling, all these toxins go out. And while exhaling also, before inhaling, there has to be a little pause. Now these are the 3 processes when we do the breathing. Normally people talk about Kumbhak and Rechak. But what we do inhaling in the process and exhaling in the process, when we do that and in between, what happens? That is Purak, Kumbhak, Rechak. Purak is taking a deep breath inside when we are breathing. Kumbhak is holding and Rechak is releasing the breath. So it has got 3 steps. तो आप लोगों को आज मैंने बताया अभी कि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसको हम गहरी लेंगे, लेते समय एकदम गहरी सांस, छोड़ते समय गहरी सांस। इनके दोनों के प्रोसेस के मध्य में जब हम लेंगे पूरी सांस, छोड़ने से पहले रुकेंगे। जब हम पूरी गहरी सांस लेंगे तो जब छोड़ेंगे तो उसको छोड़ने के बाद हम फिर थोड़ा सा रुकेंगे और उसके पश्चात फिर गहरी सांस लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे। ये श्वसन प्रक्रिया हमारी 3 चरणों में हुई, लेना, रोकना, छोड़ना। लेना, रोकना, छोड़ना। ये 3 प्रक्रियाएं क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब लेना, कुंभक मतलब रोकना, रेचक मतलब
छोड़ना। तो प्राणायाम मैंने जैसे पहले भी बताया, जितने भी वरिष्ठ नागरिक या जिनको शारीरिक चुनौतियां हैं, शल्य चिकित्सा हुई है, वे सब भस्त्रिका भस्त्रिका में गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। जो अशक्त लोग हैं, और वो जब इसको करते करते ऐसा लगे कि अब मुझे कुछ बदलना चाहिए इसे, तो अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में in Anulom Vilom, we do deep breathing and start with left nostril. This is the process. Left nostril, then breathe out from the, hold it, then breathe out from the right nostril. Hold it, then deep breathe in from right nostril, hold it, and then breathe out, deep breathe out from left nostril, hold it. This is one cycle. This one cycle should be completed in a very, very rhythmic and a musical manner, in a rhythmic manner. The more rhythmic it is, the more energy, the divine energy will flow in your body. It is the key to all the ailments. It will start removing all the ailments from each and every part of the cell, because you are giving the divine energy to each and every part of the cell, to the mitochondria level. साथियों, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम या जितने भी प्राणायाम है, बहुत ही सुरमय लयमय तरीके से करें, और लयमय सुरमय ढंग से करेंगे। जितना लय में करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रुकेंगे, फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रुकेंगे, फिर गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रुकेंगे। ये अनुलोम विलोम की एक साइकिल हुई, एक चक्र। तो जितने अशक्त लोग हैं वो सब लोग ये करेंगे। जैसे ही हम उज्जयी पे आते हैं, वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया श्वासों पे कार्य कर रहे हैं हम लोग, प्राण पे। प्राण आयाम, प्राण आयाम मतलब प्राण मतलब लाइफ, जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी। आयाम मीन्स टू गिव इट अ डायरेक्शन, टू गिव इट अ
field to give it a movement, like electricity flows in a frequency, that is its आयाम. एक बाउंड्री, हम उसको एक निश्चित करेंगे, इस बाउंड्री के अनुसार ही कार्य करेंगे. प्राण आयाम, तो हम लोग प्राणायाम करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट प्राणायाम. Those who can do, everybody should try, of any age, from young kid to the person of 100 or even more than 100 years of age. As already told, everybody should do this. Let's start. We'll start with Bhastrika. While doing pranayam, always pay attention to your breathing, because you are breathing in the divine energy,
and you are releasing all the toxins from your body, and your all the body, the whole system is getting energized. If any damage is there in the cells, if any cancer cells are there, if any cyst or any lipoma is there, everything is getting diluted. Slowly and slowly it is all getting removed. Your whole body is going to be very perfect, the best. The only thing is that you have to be totally with your breathe in and breathe out, and you have to be there through your Agya Chakra here. Always focus here. From here you see the whole body, you can see your whole body. आप जब भी प्राणायाम करें अपने पूर्ण केंद्रण अपनी सांसों के लेने और छोड़ने पे, क्योंकि प्रत्येक सांस आपको एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित कर रही है। और प्रत्येक श्वास के संग जो दिव्य ऊर्जा आ रही है आपकी कोशिकाओं को उसके केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया तक जाकर वहां से टॉक्सिन्स निकाल करके बाहर भेज रही है। इसको आप अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने सांसों के संग होना आवश्यक है। और सांसों के प्रत्येक क्रम के आने जाने को आप अपने आज्ञा चक्र से देखेंगे, और तब आप अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, पूरे शरीर को अंग को देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो विकृत कोशिकाएं हैं, कर्क कोशिकाएं हैं, कोई गांठ है, लाइपोमा है, सिस्ट है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आप स्वस्थ और स्वस्थ निरोगी। चलिए करते हैं कपालभाति, कम से कम 5 मिनट। प्रारंभ में इसकी आवृत्ति 1 मिनट में 60 से 90। जब अभ्यास अच्छा हो जाए, शरीर इसका अभ्यस्त हो जाए, तब 90 से 120, 120 से 150, 180, इससे ऊपर ना जाए, लेकिन लयबद्ध तरीके से। When you become used to this, do this in a very rhythmic manner. Start with 60 to 90 strokes per minute. When you become rhythmic in this, then go up to 120, 150, maximum 1 to 180 per minimum 5 minutes, then as per time availability and capacity न्यूनतम 5 मिनट, फिर समय की उपलब्धता के अनुसार जितना कर सकते हैं। खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, या भोजन के 3 से 3.5 घंटे उपरांत, 3 to 3.5 hours after your meal. That is the minimum time. The best is with empty stomach.
always sit straight while doing pranayam. Once you go in meditation, dhyan, that might be the time when you are there with the supreme power. That time your body may not be totally in control, but it is there in the supreme's control. So just leave it there. As soon as you get into trance, from there you see the body. You can see each and everything, but be there. Till pranayam you are doing, be very specific on a very rhythmic. Deep in, deep breathe in, hold, deep breathe out, hold, deep breathe in, hold, deep breathe out, hold. Now we'll go for Ujjayi pranayam. In Ujjayi, we do the deep exhaling, then inhale from our nostrils. Ujjayi pranayam में हम श्वासों को पूरी गहरी छोड़ देते हैं, फिर दोनों नासिकाओं के माध्यम से गहरी सांस लेते हैं. Fully focus on your deep breathe in, breathe out. We breathe in with the vibrating sounds, with the Om inside, minimum 9 times as per time availability and your body capacity. You can do it for more time. Before Ujjayi, we have left one step. We have to do by 5 to 6 times in hot places or where the summers have set in, and in winter places or the cold places it can be done as per the climatic temperature and condition. That gives lot of energy. जहाँ गर्मी है या गर्म क्षेत्र है वहाँ पे इसको 5 से 6 बार करें. बहुत अधिक करना है तो 7-8 बार, 9 बार, इससे ऊपर नहीं. जहाँ ठंडा पड़ रहा है और जहाँ ठंडा प्रदेश और ठंड का समय है वहाँ पे आप इसको अधिक बार कर सकते हैं. वहाँ के टेम्परेचर और बॉडी को कितनी एनर्जी आपको डिवाइन एनर्जी देनी है उसके अनुसार. इसमें हम पूरी सांस को बाहर करके अपने पेट और नीचे के हिस्से को अंदर खींच करके ऊपर की तरफ खींचते हैं और गले को थोड़ी को अपने छाती से लगाते हैं और फिर होल्ड करने के बाद फिर सांसों को गहरा छोड़ते हैं और फिर वो करते हैं. चलिए प्रारंभ करते हैं.
Now we'll do Ujjayi. From here, everybody will be joining. All the people of any age.
Whenever you do pranayam, always be with your breath, always from your आज्ञा चक्र. जब भी आप प्राणायाम करते हैं आप हमेशा अपने सांसों के साथ हो और उन सांसों को आज्ञा चक्र से हमेशा देखें. जब आप उज्जयी प्राणायाम पे आते हैं तो आप ये अनुभव करना प्रारंभ करते हैं कि आप इसकी ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में सीधे अनुभव कर पाते हैं और गले में, और पूरा का पूरा जो आप गट मसल्स हैं उसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होना प्रारंभ होते हैं. मस्तिष्क से लेकर के अंदर तक जितने भी आपकी ग्लैंड्स हैं, जब आप उन ग्लैंड्स के ऊपर दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं तो वो अपने बेस्ट वर्किंग सर्वोत्तम कार्य प्रणाली में आ जाती है. From all the pranayams activate your glands, but when you come to Ujjayi pranayam, it starts having direct energy, divine energy transferred to your glands in the skull, in the head, and it starts releasing the hormones, chemicals required for the body, and it activates all the glands from gut muscles deep inside up to the rectum bottom, all the gut muscles, all the glands which are placed in your body. तो हम लोग अभी और ऊंचाई करेंगे.
This Ujjayi pranayam is very important as it starts activating our important glands in the skull, pituitary, pineal, hypothalamus with thalamus, and it directly acts upon thyroid and hypothyroid. All these glands, they are very important for the whole system. उज्जयी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है. ये आपके मस्तिष्क के अंदर स्थित पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के साथ उनको सक्रिय करता है. वहां से हार्मोन रसायन का स्राव होता है और ये सीधे थायराइड, हाइपोथायराइड ग्लैंड्स पे कार्य करता है. आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम. मिनिमम 10 मिनट और इससे अधिक जितना अधिक कर सकें उतना लाभप्रद है. ये अद्भुत प्राणायाम है. बाई नासिका से लेंगे गहरा, रुकेंगे, छोड़ेंगे गहरा, रुकेंगे, गहरा लेंगे, रुकेंगे, फिर गहरा छोड़ेंगे. ये एक चक्र है. इस चक्र की आवृत्ति 1 मिनट में 2 बार, इसको 1 बार तक लेकर के आने का प्रयास करें, लेकिन लयबद्ध तरीके से. ट्राई टू मेक दिस साइकिल from 2 to 1, but in a very rhythmic manner. Let's start.
तो हम लोगों ने अभी अनुलोम विलोम किया। न्यूनतम 10 मिनट करना ही करना है, और जितना अधिक लंबा समय कर सकेंगे उतना आपके इस शरीर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, ये समस्त केमिकल्स, समस्त रसायनों और समस्त औषधियों का उत्पादन क्षेत्र है ये। और जो हमारी ग्लैंड्स हैं, उनके सहायता से पूरे शरीर में जितने आवश्यक औषधियाँ वो देता है, हम इन पे काम करना बंद कर देते हैं। बाहर से हमें उसका सहायता की आवश्यकता पड़ती है। All the chemicals, all the hormones, all the medicines which are required for the body are directly connected with our head. All the important glands which are there in the skull, pituitary, pineal, hypothalamus, and thalamus. It is the main production unit, and with the help of all other glands, it secretes, produces the required, desired
hormones, chemicals, medicines inside the body. The body glows itself because body is designed in a very beautiful manner. It's each and every cell is designed to excrete the toxins, to throw out the toxins from the body. It only faces challenges when it is overburdened or the body is not taken care of. हमारे शरीर की अद्भुत संरचना, इसका प्रत्येक कोशिका इस प्रकार से बना है कि वो अपने अंदर बिल्कुल भी विषाक्त तत्वों को रखना नहीं चाहता, वो पूरा बाहर कर देता अलग अलग माध्यम से। चुनौती तब आती है जब हम उसके कार्य क्षमता से अधिक विषाक्तता अंदर प्रवेश करवा देते हैं, तो उस पर कार्य करना हमारे हाथ में है। ये शरीर हमारे नियंत्रण में है। This body is in our control. इसको समझने के लिए 5 कोश और 7 चक्र, 5 koshas and 7 chakras. To understand our body, to understand that, to understand us. So let's move on to Brahmi. In Brahmi, we place 2 middle fingers on our eyes, 4 fingers on forehead, last finger, the smallest finger on cheeks, and thumbs on the ears, and we gently press it. भ्रामरी प्राणायाम में ये 2 मध्य उंगलियां पलकों पे, प्रथम उंगली माथे पर, कानी उंगली अंतिम उंगली गालों पर और अंगूठे कान पे। हर प्राणायाम को हमें लंबी गहरी सांस पूरा का पूरा केंद्रण सांसों पे आज्ञा चक्र। चलिए प्राणायाम करते हैं कम से कम 9 बार। अधिक से अधिक आपकी क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता और समय के उपलब्धता के अनुसार। ओम
Om. 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 Every pranayama we have to do in a very rhythmic and systematic manner. Like in Anulom Vilom, we have to always start inhaling from left nostril. Some of the people may challenge it. Now take this example. They may give example also.
by starting with the right nostril. There will be all these things. There are certain challenges always. The people are there with challenging set of bent of mind. So cautious, be very cautious. Always start from left nostril, especially on low breath, and then end by releasing by left nostril only. That is for a second. I am giving you an example. A person can drive the car in a rear gear also and can drive at a very fast speed also. But for how much distance and how long? There is always danger of an accident. And you can put the message that I have driven with the speed of so much, crossing 100, a kilometer, a mile, 2 kilometers, 3 kilometers. But the conditions have to be there. The roads have to be empty, fully empty, totally vacant. Else, what can happen? One can understand. The same way, some persons doing stunt on the mobile by standing on its seat can do it, can drive the vehicle for half kilometer, a kilometer, 2 kilometer, 5 kilometers. But can it be done in the crowded area or the places? The same way we have to understand. The system is given with a purpose. साथियों, जब हम प्राणायाम करते हैं पूरा लयबद्ध सुरमय संगीतमय तरीके से और दी हुई प्रक्रिया से विशेष रूप से अनुलोम विलोम हमेशा बाई नासिका से लेंगे, दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, दाई नासिका से लेंगे, बाई नासिका से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। बहुत से लोग कई सारे लाभ के संग दिखा करके बता करके कि दाहिने नाक से लेना चाहिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाएं से निकालिए। बहुत सी चीजें बोली जा सकती है, तो उसको उदाहरणों से लीजिए। आप अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में, रियर गियर में चला सकते हैं और गति भी चला सकते हैं, लेकिन कितनी दूर? बाकी खतरों से उत्पन्न जो में जुड़ी हुई चीजें हैं, उससे आप स्वयं समझ रहे होंगे कि क्या क्या हो सकता है। उसी प्रकार से मोटरसाइकिल या टू व्हीलर उसके गद्दे पे खड़े होकर के, सीट पे खड़े होकर के आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होगी? क्या भीड़ में ऐसा कर सकते हैं? नहीं। सदैव एक बना हुआ है एक खतरा, और अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना की कोई आशंका नहीं। आइए चलने करते हैं उद्गीत ओंकार, इसे भी न्यूनतम 9 बार, अधिकतम आपके समय, शरीर की अनुकूलता, सभी चीजों को देखते हुए।
Now we'll go for meditation.
अब हम ध्यान पे जाएंगे। जो ऑलरेडी पहले जा चुके हैं वो सिर्फ मेरी बातों को सुने और अपने को वहाँ पे केंद्रित करें और पूरा का पूरा ध्यान देते अपनी आज्ञाचक आप इस यात्रा में अपने शरीर को बाहर से सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं। शरीर मस्तिष्क में तेज है, हाइपोथैलेमस गले में थायराइड, बाकी नीचे और गैस आपको ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए और द ग्लैंड्स इसका हाइपोथैलेमस थायराइड हाइपोथायराइड all activated and ready to take further steps. Still want to adjust sitting and just before you launch or touch. Some of you might already be on the path of bliss. Be with your feet, which has become very small. Let it be cutting the required divine required be there. आप अपने आज्ञा चक्र के साथ श्वासों को बिल्कुल ध्यान से हटा दें। सांसें अत्यंत सूक्ष्म हो गई है। पूरा शरीर तक ऊर्जा से भरा है। उतनी ही श्वास को मिल रही है जो इस यात्रा की अत्यंत आवश्यक और पर्याप्त। और वो भी सांस एक सांस सूक्ष्मतम सांस ऊर्जा दिव्यता से भरी। कोई भी विचार, कोई भी भाव आ रहा है उसको आने दें। उसके आपको कोई कार्य नहीं करना है। आएंगे चले गए। यदि आप उस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो वो ही स्थिर हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से अपने को अपने आज्ञा से केंद्रित करें। वहां से अपनी इस यात्रा का आनंद। Let the thoughts, feelings come. They will come and go.
Don't be with those feelings or the thoughts. Be there with your heart. Be there with your device. Be there with the divinity.
आइए अब वापस करना चाहते हैं करते हैं इस दिव्य शक्तिमान जिसने ये दिव्य शक्ति हमारे शरीर में दी, प्रत्येक कोशिका में दी, कोशिका के सूक्ष्मतम तत्व के अंदर तक दी, जिससे हमारे शरीर की संपूर्ण विषाक्तता बाहर, पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से सारी व्याधियां उस दिव्य ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर उसको हम रगड़ करके अपनी स्थितियों पर लेकर के उसको अपने पलकों पे उस ऊर्जा को बाहर से भी हम तरंगों का अनुभव अवश्य Now we should thank the Almighty, the Supreme, who has given this divine magic, the divine feeling, the divinity inside each and every cell, up to the mitochondria level, its nucleus. And this energy which is flowing inside each palm,
and take this energy on our palm and then put it on our eyes. Slowly blink it, don't open it. Put your hand over the divine energy from our center. Once again, thank Supreme सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देते हुए दिव्य ऊर्जा के लिए, दिव्य अनुभव के लिए फिर से उस ऊर्जा प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होते हैं। आंखों पर रखें, आंखों के पलकों को खोलें 3-4 बार, अंदर हल्का सा देखें, फिर बंद रखें। प्रणाम करें। आंखों को सामने उसको हथेलियों को खोल करके सबसे पहले उसे देखें। हरिओम। Friends, always be with your breath. While being with your breath, just focus on your Agya Chakra. साथियों, सदैव अपनी सांसों के साथ रहें, आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें और उस दिव्य ऊर्जा का आनंद लें and enjoy the divine energy. And when you come to the state of meditation, you will be above the breathing and everything. You will be there with the divine energy. जब आप उस तुरीय अवस्था में, ध्यान अवस्था में आ जाएंगे इसको करते करते, तो आपका श्वासों से बाकी अन्य विचारों से ध्यान हट जाएगा और आप उस दिव्य ऊर्जा के साथ होंगे। आज के दिन के लिए सभी को धन्यवाद। ओम।